Okay, so now here we going to start with the new topic today is Guillain-Barré syndrome, GBS. Okay, so now just wait a minute for 1 minute. Okay, so here you can see the title GBS, Guillain-Barré syndrome. Alright, now we are heading to the definition. In definition, you can see GBS, it's a acute, frequently severe and autoimmune disorder. It's a post-infectious polyneuropathy involving mainly motor but sometimes also sensory and autoimmune nerves. Affect people of all the ages and it's not hereditary. Most patients have a demyelinating neuropathy, but primarily axonal degeneration is documented in some cases, also known as acute inflammatory demyelinating polyneuropathy, AIDP. Okay, so in GBS, basically in definition they are trying to say you that it's a polyneuropathy. That means it can, in this disease there is one than more motor neuron can be involved. Okay, so that's why it's called polyneuropathy. All right, so okay, Dhruvi is coming. Polyneuropathy, and it is also known as acute inflammatory demyelinating polyneuropathy. That you will understand in pathogenesis section, so don't worry. Okay, now change the slide please. Okay, here we have a pathogenesis. First, peripheral nerve demyelinating in Guillain-Barré syndrome is believed to be immunologically mediated. Second point, humoral factors and T cell mediated immune phenomena have been implicated in the damage of myelin or myelin producing Schwann cells. Guillain-Barré syndrome, T cell sensitization occurs, which causes loss of myelin, which disrupt the nerve impulses, and loss of myelin, edema and inflammation of the affected nerves causes a loss of neurotransmission to the periphery. Okay, let me understand you by the figure, explaining the figure. So just please in the next slide, go to the next slide. All right, first try to understand what is the neuroanatomy. So here you can see there is a nerve in which there are parts. First is that is, you can see the red round part, which is a nucleus. Then pink part is a soma. Then that yellow part in which there is a nucleus, which is called Schwann cells. All right, and then there are nodes. Between the two myelin sheath there is a one gap, which is called node of Ranvier. Okay, and then you can see that yellow part, which is called myelin sheath. All right, so from Schwann cell to the up to the axonal terminal part, that is called, whole section is called axon, right? And after that there is a axon terminals. All right, and you can see that another part just surrounding the soma part, that is a dendrites. All right, dendrites. Okay, so what happened in pathogenesis of Guillain-Barré syndrome, GBS, that वहाँ पे जो टी लास्ट राइट साइड के फिगर आप देख सकते हो, उसमें एंटीबॉडीज आपको दिखाई देंगे जो टी सेल्स बोल सकते हैं उसको. ठीक है, सो वो ऑटो इम्यून, इट्स GBS इटसेल्फ ऑटो इम्यून डिसीज. दैट मीन्स कि वो कुछ ऐसे तरह के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, डायरेक्ट न्यूरन के जो माइलिन शीथ होती है, जो यहाँ पे हमने दिखाई गई है येलो पार्ट में. ठीक है, तो वो माइलिन शीथ पे वो लोग अटैक करते हैं और उसको डैमेज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो वो डैमेज होने के बाद जो न्यूरो इम्पल्सेस होते हैं वो ठीक से
न्यूरो ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, तो वो न्यूरो इम्पल्सिस मसल तक नहीं पहुंच पाता है। दैट्स मीन्स कि मसल का आपको एक्शन ज़्यादातर नहीं दिखाई देगा, और दूसरे भी कॉजेस और इफ़ेक्ट हो सकता है, तो वो आगे आएगा, ठीक है, आगे की स्लाइड में। सो यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ आपको एक और बार समझाने की। फर्स्ट इज न्यूरो-गुलियरमैन सिंड्रोम। यू कैन सी हियर इन अ पेरिफेरल नर्व, देन you can see that myelin sheath on just above the peripheral nerve figure. Then in a very right side figure, there is a nerves are not able to conduct electrical impulses normally. So in case the damage is severe, the underlying nerve can be even die. ठीक है, so okay, so इससे आप नेक्स्ट अबो की स्लाइड में अगर आप पढ़ोगे तो वही एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है कि जो टी सेल्स होते हैं उसको आप मानो ऑटोइम्यून से एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए हैं, ऑटोइम्यून डिजीज प्रोडक्शन से वो टी बॉडीज सेल प्रोड्यूस हुए हैं, वो डैमेज न्यूरॉन के जो माइलिन शीथ होता है उसको डैमेज कर रहा है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास नहीं हो पाते आगे, और मसल्स या दूसरे बॉडी के सेल्स को मैसेज नहीं पहुंचता है, तो वो डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। ओके, नाउ गो टू द अदर स्लाइड, दैट इज अ पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें ट्राई करो अंडरस्टैंड करने की कि डीमाइलिनेशन दो तरह के हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज माइल्ड हो सकता है एंड सीवियर हो सकता है। सो इन माइल्ड में क्या होता है, सो देर इज अ वीकनेस, सेंसरी डिस्टर्बेंस, राइट, सो सेंसरी डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। देन देर इज अ कंडक्शन ब्लॉक, स्लो कंडक्शन वेलोसिटी अलोंग द नर्व्स। ओके, सो बेसिकली द सेम थिंग कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का जो कंडक्शन होता है, जो ट्रांसमिशन होता है, वो स्लो हो जाता है अलोंग विद द नर्व्स, क्योंकि कुछ माइलिन शीथ डैमेज हो चुके हैं, दैट्स वाई। तो उसका रीमाइलिनेशन होता है, ठीक है, इन माइल्ड सिम्टम्स, एंड देन क्लिनिकल रिकवरी उसकी स्पीडीली आ सकती है। ऑलराइट, सो इन डीमाइलिनेशन में माइल्ड सिम्टम्स में ये होता है। अभी सिवियर सिम्टम्स, सिवियर डैमेज हुआ है तो उसकी वजह से सेकेंडरी एक्सोनल डैमेज हो जाता है, जो पूरा का पूरा एक्सॉन होता है, जो मैंने अभी समझाया न्यूरो एनाटॉमी में, वो डैमेज हो जाता है, तो उसकी फिर रिकवरी बहुत पुअर आती है। सो बेसिकली what you have to understand that डीमाइलिनेशन अगर माइल्ड हुआ है तो उसका क्लिनिकल रिकवरी कैसे आएगा, और जो सीवियर हुआ है तो उसका रिकवरी कैसे आएगा, ठीक है। सो माइल्ड सिम्टम्स में रिकवरी जल्दी आ सकती है और सीवियर सिम्टम्स में रिकवरी बहुत ही स्लोली आ सकती है, ठीक है। ओके, नाउ गो टू द अदर स्लाइड, दैट इज अ एपिडेमियोलॉजी। Okay, here in epidemiology, usually it is occur in children over 4 to 9 years old, and in adults or in general public, there is a overall frequency is 1.9 cases per 1 million population. Okay, and follows infection or immunization by 10 days follow the respiratory tract infection or gastrointestinal infection. सो बेसिकली इसका जो एटियोलॉजी है वो मोस्टली उसमें फर्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है, राइट। वी विल सी इन द एटियोलॉजी पार्ट। ओके, नाउ मूव टू द अदर स्लाइड, दैट इज द एटियोलॉजी। ओके, हियर इन एटियोलॉजी यू कैन सी दैट इज अ GIT इन्फेक्शन, अगेन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक इन्फेक्शन। कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, इट्स अ बैक्टीरियल नेम, ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा है साइटोमेगालोवायरस, एक वायरस है जो 10 to 22% इन्वॉल्वमेंट इनका भी हो सकता है, राइट। देन अनदर रीजन कुड बी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसमें माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी हो सकता है, राइट। सो वो एक है, उसकी वजह से हो सकता है। फिर है EBV वायरस, दैट मे बी यू कुड हर्ड इन सम अदर डिजीज, दैट इज इप्स्टेन बेयर सिंड्रोम, उसका 10% इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और वैक्सीन्स है, रेबिन्स है, एंटी फ्लू इन्फ्लुएंजा है, उसकी वजह से भी शायद ये हो सकता है। ओके, सो इटियोलॉजी वैसे तो इससे भी ज़्यादा इटियोलॉजी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द अभी तक के जितने रिसेंट सर्चेस हुए हैं इसमें ये ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं, राइट। Okay, now move to the other slide, that is the clinical features.
Okay, now you will understand what exactly happened in GBS. So okay, and while I'm reading, just try to correlate with the right side figure. Okay, so first let me just read everything and then I will explain you. First, okay, there is a weakness onset in gradual and progresses over the weeks. ठीक है, सो वीकनेस पहले एक पार्ट में होता है, फिर ओवर द पीरियड वो वीकनेस जनरलाइज हो जाती है, पूरी बॉडी में हो जाती है, राइट. बट इट विल टेक द वीक्स और सम मंथ्स टू वर्जन द सिचुएशन. ऑलराइट, फर्स्ट देयर इज लोअर एक्सट्रीमिटीज unable or refusal to walk, then trunk, then upper limbs, then bulbar muscle weakness, including difficulty in swallowing, weak jaw, facial muscle, progressive loss of speech, and weakening of the tongue, then flaccid tetraplegia, that is also called quadriplegia. In quadriplegia, the whole upper body and lower extremity, upper extremity and lower extremity both are affected. So that is, this whole is known as a Landry ascending paralysis. So एक लैंड्री नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्चुअली ऑब्जर्व किया था, इन्वेंट किया था, इसलिए उन्होंने उनके नाम पर से इस पैरालिसिस को नाम दिया है लैंड्री असेंडिंग पैरालिसिस. वाई असेंडिंग? बिकॉज इसमें पहले लोअर एक्सट्रीमिटीज अफेक्ट होते हैं, जिसमें हमको पेशेंट के ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि वो वॉक करने के लिए ना बोल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही वीक फील कर रहे हैं अपने लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं वॉक करने के लिए. फिर ट्रंक अफेक्टेड होता है, उसके ऊपर जाता है, फिर उसके ऊपर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ आता है, तो वो अफेक्टेड होता है. बल्बार वीकनेस, यू ऑल नो दैट उसमें फेस कवर होता है पैरालिसिस, जिसमें स्वॉलोइंग की डिफ़िकल्टी होती है, अपना जो जॉ होता है वो वीक हो जाता है. देन फेशियल मसल्स में ऑक्यूलर मसल्स वीक हो जाता है, राइट. फिर टंग का पैरालिसिस हो सकता है. तो ये फ्लैसिड, फिर उसके बाद फ्लैसिड जो सिचुएशन है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिप्लेजिया. दैट मीन्स द होल बॉडी, बेसिकली द upper two extremities and lower two extremities together known as the four extremities facility, that is called quadriplegia. in quadriplegia में पूरी बेसिकली पूरी बॉडी ही अफेक्टेड हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है. तो ये सब कुछ मिलाकर इसको एक नाम दिया गया है, वो है लैंड्री असेंडिंग पैरालिसिस. ओके, नाउ अनदर सिम्टम और साइन इज proximal and distal muscles are involved relatively symmetrical, but asymmetry is found in 9% of patient. Okay, so ज़्यादातर पेशेंट में प्रॉक्सिमल और डिस्टल मसल्स, जो मैंने अभी बोला कि अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का साइमल्टेनियसली अफेक्टेड होता है, लेकिन एसिमेट्री 9% पेशेंट ऐसे होता है जिसमें एसिमेट्री सिम्टम्स और साइन आपको दिखाई देंगे. ठीक है, ऑलराइट. फिर उसके बाद है मसल टेंडरनेस एट द ऑनसेट. ठीक है, सो अगर आप पेशेंट को कहीं पे टच करोगे कुछ भी एग्जामिनेशन करने के लिए या कुछ भी, तो उसको वो टेंडरनेस फील होगा, उसको थोड़ा पेन फील होगा. फिर पैरालिसिस इन सम केसेस जिसमें पूरी बॉडी पैरालिसिस नहीं भी होती है. पैरालिसिस मीन्स आपको सिर्फ वो एक ही पैरालिसिस की इफेक्ट है, उसके साथ साथ आप बॉडी मूव कर सकते हो, तो उसको पैरालिसिस बोल सकते हैं, राइट. पैरालिसिस मीन्स व्हाट, कि पूरा बॉडी काम नहीं, पूरा मसल या पूरा लिम्ब आपका काम नहीं कर रहा है, राइट. वो फ्लैसिड में चला गया है, लेकिन पैरालिसिस में आपका बॉडी मूव तो करेगा, लेकिन वो डिफ़िकल्टी होगी उसको मूव करने के लिए. ठीक है, फिर है एरिफ्लेक्सिया. इट्स अ कंडीशन इन विच योर मसल डोंट रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली, राइट. सो आप जो रिफ्लेक्सिस एग्जामिनेशन में करते हो, तो उसमें आपको GBS केस में रिफ्लेक्सिस नहीं मिलेंगे, राइट. आप कोई भी स्टिम्युलेशन दोगे तो उसको रिफ्लेक्सिस नहीं मिलेंगे, तो यही उसका एक सिम्टम्स है. ओके, नाउ द अनदर स्लाइड. देयर आर अनदर साइंस एंड सिम्टम्स. ओके, उसमें है बल्बार इन्वॉल्वमेंट. 50% पेशेंट में बल्बार इन्वॉल्वमेंट होता है. सो बल्बार इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, अगेन डिफ़िकल्ट, आप राइट साइड के फिगर में एक बार देखिए. डिफ़िकल्टी इन आई और फेशियल मूवमेंट सच एज ब्लिंकिंग, देन च्यूइंग मसल्स, देन लाफिंग, स्वॉलोइंग और स्पीकिंग, राइट. तो बेसिकली बल्बार इन्वॉल्वमेंट में फेस का ध्यान रखना है, फेस का सब कुछ इन्वॉल्व होता है, राइट. Okay, now let me read the whole symptoms and signs, then I will explain you. In bulbar involvement, there is a 50% patient
ओके वेट, देयर इज इन 50% पेशेंट में बल्बार इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है. तो उसमें डिस्फेजिया एंड फेशियल वीकनेस, साइंस ऑफ इम्पेडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर. ऑलराइट, ठीक है. And then interfere with the eating and increase the risk of aspiration. Okay, cranial nerve involvement 50% होता है. Then facial nerve, oculomotor nerve, then autonomic involvement होता है. Then lability of the blood pressure होता है, मीन blood pressure fluctuate हो सकता है. Then postural hypotension होता है. Profound bradycardia means there is a decrease in a heartbeat. ओके. देन ओकेजनली एसिस्टॉल, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, रिटेंशन ऑफ इनकंटिनेंस हो सकता है, राइट. सो 20% ऑफ पेशेंट में यूजुअली वो ट्रांजिएंट होता है, ठीक है. ट्रांजिएंट मीन्स 24 आवर्स में वो सिम्टम्स दिखाई देंगे, आफ्टर दैट यू विल नॉट सी दैट सिम्टम्स इन पेशेंट. इट कुड बी और इट कुड नॉट बी. ऑलराइट, सो दैट्स वाई दे हैव जस्ट पुट 20% ऑफ केसेस. Alright, so in bulbar involvement you all know that, okay, dysphagia you also know that the difficulty in swallowing, ठीक है. Then cranial nerve involvement हो सकता है. cranial nerves आपको पता ही होगा, आपको जब facial palsy और Bell's palsy में बताया था, right, trigeminal neuralgia में बताया था, ठीक है. तो ये सारे symptoms होते हैं. bradycardia, so decrease in heart beat, ठीक है. Then hypotension, जो blood pressure उनका low होता है, ठीक है. पोस्चर हाइपोटेंशन, दैट मीन्स कि जब आप सो जाते हो और सो के आप जब उठते हो तब आपको थोड़ा डिजीनेस और फेंटनेस फील होता है, तो यू कैन कंसिडर दैट द पोस्चर हाइपोटेंशन. सो GBS पेशेंट में बेसिकली ये दिखते हैं. देन ओकेजनल एसिस्टॉल, राइट, थोड़ा बहुत चेस्ट पेन भी हो सकता है. देन भारी सा लगता है चेस्ट में. देन यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. और जो यूरिनरी रिटेंचर और इनकंटिनेंस जो होता है वो 20% पेशेंट में होता है, यूजुअली वो ट्रांजिएंट होता है, ठीक है. सो वो हो सकता है. ऑलराइट, नाउ गो टू द अदर स्लाइड प्लीज. ओके, सिम्टम्स ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस एंड meningoencephalitis in young children, ठीक है. सो इन यंग चिल्ड्रन में वायरल मेनिंजाइटिस जो आपने शायद पढ़ाई है, राइट, वो दूसरे कंडीशन में, तो उसकी वजह से, या फिर मेनिंगोसेफेलाइटिस में जो यंग चिल्ड्रन अफेक्ट होते हैं उसमें भी ये GBS एज अ कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, राइट. फिर देन CNS इन्वॉल्वमेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर वो इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसकी वजह से अटैक्सिया, ठीक है. फिर पेपिला एडिमा इज अ स्वेलिंग ऑफ योर ऑप्टिक नर्व विच कनेक्ट्स द आई एंड ब्रेन. दिस स्वेलिंग इज अ reaction to a buildup of pressure in and around your brain and may have a many causes, right. So पेपिला एडिमा की वजह से जो आपका ऑप्टिक नर्व होता है उसमें स्वेलिंग हो जाता है, उसमें एडिमा हो जाता है, तो उसकी वजह से वो रिएक्शन देता है, राइट. सो जो प्रेशर बिल्डअप करता है इन और अराउंड द ब्रेन, दे मे हैव द मैनी कॉजेज. ऑलराइट, देन मिलर फिशर सिंड्रोम, उसमें एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, अटैक्सिया और एरिफ्लेक्सिया होता है. ओके, नाउ यू कैन सी द फिगर इन अ राइट साइड. उसमें पेशेंट को ये मिलर फिशर सिंड्रोम के साइंस और सिम्टम्स दिखाने की कोशिश की है. उसमें आप देख सकते हो कि राइट साइड का जो गेज है, ठीक है, फर्स्ट फिगर है उसमें राइट साइड गेज दिखाया गया है, ठीक है. फिर जो मिडल फिगर है उसमें पेशेंट स्ट्रेट गेज कर रहा है, ठीक है. और जो लेफ्ट साइड का फिगर है उसमें पेशेंट सॉरी लेफ्ट साइड का गेज कर रहा है. तो ये एक उसका वो देख रहा है सामने, लेकिन उनका जो साइड है वो फिक्स हो जाता है. आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ राइट साइड ही देख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है. लेकिन GBS में अगर मिलर फिशर सिंड्रोम होता है तो उनका ऑप्थेल्मोप्लेजिया मीन्स ऑप्थेल्मिक मसल्स के वीकनेस और पैरालिसिस की वजह से उनका साइड एक फिक्स हो जाता है, राइट. सो हमको लगता है वो राइट गेज ज़्यादा करते हैं, ऐसा लगता है, स्ट्रेट अहेड गेज करते हैं और लेफ्ट गेज करते हैं, राइट. ओके, सो नाउ गो टू दी अनदर स्लाइड, दैट इज अ इन्वेस्टिगेशन स्लाइड. ओके, इन इन्वेस्टिगेशन देयर इज फर्स्ट लंबर पंक्चर. उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड
CSF fluid elevation of CSF protein more than a twice upper limit of normal. Okay, so cell content of CSF is normal, less than 10 cells per millimeter of cubic millimeter. Then glucose level is will be normal and bacterial and viral culture is negative. Okay, so इसमें ये क्या है, just try to see in a right side figure. आपको एक बैग दिखाई दे रहा होगा, उसमें एक नीडल है. तो उसमें क्या करते हैं कि लंबा पंक्चर करते हैं, उससे वो CSF फ्लूइड निकालते हैं, फिर उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं और उसमें रिपोर्ट में अगर एलिवेशन ऑफ CSF प्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है. फिर सेल कंटेंट ऑफ CSF इज़ नॉर्मल लेस देन 10 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर अगर होता है तो वो एक साइन होता है. फिर ग्लूकोज लेवल उसमें नॉर्मल है, वो इंटेक होता है. और बैक्टीरियल और वायरल कल्चर इज ऑल्सो नेगेटिव, राइट. तो बेसिकली ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है जिसमें ये लंबा पंक्चर करते हैं, राइट. फिर दूसरा है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, दैट इज अ मोटर नर्व कंडक्शन. वेलोसिटीज आर greatly reduced and sensory nerve conduction time is often slow. Evidence of acute denervation of the muscle. So electromyography, you all know that उसमें motor nerve conductivity, sensory nerve conductivity, then muscle performance क्या है, वो इलेक्ट्रिकल वो मेजरमेंट होता है, तो वो आपको इलेक्ट्रोमायोग्राफ से ही पता चलेगा, राइट. नाउ मूव टू द अनदर स्लाइड, दैट इज सीरम क्रिएटिन काइनेस. उसका एलिवेट हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है, ठीक है. फिर मसल बायोप्सी ली जाती है, तो उसमें क्या होता है कि अपीयर नॉर्मल इन अर्ली स्टेज में अगर GBS है, GBS का अर्ली स्टेज है, तो वो नॉर्मल दिखाई देगा. लेकिन जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि वो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मीन्स ज़्यादा वीक जाते हैं, उसके बाद में वो सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं और दिखते हैं हमें, राइट. तो उसमें आपको स्लो एविडेंस ऑफ डिनर्वेशन एट्रोफी इज इन क्रोनिक स्टेजेस, सूरल नर्व बायोप्सी और सेगमेंटल डीमाइलिनेशन, फोकल इन्फ्लामेशन. ओके, सो बायोप्सी में आपको ये सब कुछ रिपोर्ट में दिखाई देगा. दैट इज अ स्लो एविडेंस ऑफ डिनर्वेशन एट्रोपी इन अ क्रोनिक स्टेजेस. सूरल नर्व जो एक नर्व है हमारी बॉडी में, लोअर लिम्ब में, तो उसमें आपको ये एट्रोफी दिखाई देगी, ठीक है. और सेगमेंटल डीमाइलिनेशन भी हो सकता है. सो जो जैसे मैंने बताया कि एक्सोनल जो हमारा डीजनरेट हो जाता है, एक्सोनल का डीमाइलिनेशन होता है, उसकी जो माइलिन शीट है वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो सेगमेंटल पूरा सेगमेंट भी वो डीमाइलिनेशन में जा सकता है, राइट. और फोकल इन्फ्लामेशन होता है, फोकल इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, राइट. उसके बाद है सीरोलॉजिक टेस्टिंग फॉर कैम्फिलोबैक्टर इन्फेक्शन, ठीक है. तो सीरोलॉजिक टेस्टिंग होता है, उसमें वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कैम्फिलोबैक्टर इन्फेक्शन है कि नहीं. ऑलराइट, सो नाउ मूव टू द अदर स्लाइड, दैट इज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस. डिफरेंशियल डायग्नोसिस मीन्स इसी GBS की तरह के दूसरे डिजीज़ भी है, उसमें भी ये सिम्टम्स अगर देखते हैं तो हमें सिर्फ वो डिफरेंशियल करना है. तो उसके लिए ये टेस्ट होते हैं. फिर ये दूसरे जो सिम्टम्स जो डिजीज़ दिखाई दे रहे हैं उसके भी थोड़े बहुत टेस्ट करते हैं, राइट. फिर वो परफेक्ट डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं. वैसे भी GBS जल्दी से डायग्नोस नहीं हो पाता है, वो कभी कभी मिस डायग्नोस भी हो सकता है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन में भी होता है, राइट. सो फर्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, देन सेकेंड इज ट्रांसवर्स माइलाइटिस, देन थर्ड इज टिक पैरालिसिस, फोर्थ वन इज पोलियोमाइलाइटिस, देन फिफ्थ वन इज बॉट्यूलिज्म एंड सिक्स्थ वन इज डिप्थेरिया. सो ये अलग अलग टाइप के डिजीज़ है, ठीक है. सो इसमें इसके और GBS के आप सोच सकते हो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्योंकि सिम्टम्स और साइन सेम हो सकते हैं, राइट. Now go to the another slide, that is a treatment. Okay, in treatment, patient with early stages of this acute disease should be admitted to the hospital for observation because the ascending paralysis may rapidly involve respiratory muscles during the next 24 hours. So basically मैंने आपको बोला था डेफिनेशन ऑफ एटियोलॉजी में कि मोस्टली पहले रेस्पिरेटरी मसल ही अफेक्ट होते हैं इस GBS में, लेकिन अभी वो उसकी वजह से GBS होने वाला है कि नहीं होने वाला है वो आपको कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि उसके सिम्टम्स जल्दी अर्ली स्टेज में बहुत माइल्ड होते हैं.
लेकिन पीरियड ऑफ ज़्यादा प्रोग्रेस होता है, लाइक ज़्यादा वीक्स चले जाते हैं, तब उसके सीवियर सिम्टम्स हमको, अगर GBS डिटेक्ट हो गया तो वो सिम्टम्स दिखाई देंगे, राइट। सो रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट होती है, रेस्पिरेटरी मसल्स अगर अफेक्टेड हो जाते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट होती है। पेशेंट विद स्लो प्रोग्रेशन में सिंपली बी ऑब्जर्व फॉर स्टेबिलाइजेशन एंड स्पॉन्टेनियस रेमिशन विदाउट ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे मैंने बोला था, अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो उसका रिकवरी पीरियड जल्दी आएगा। थर्ड वन इज पेशेंट विद रैपिडली प्रोग्रेसिव एसेंडिंग पैरालिसिस, जो हमने साइंस एंड सिम्टम्स में देखी थी, उसका इलाज इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है रिकवरी, राइट। सो उसमें 2 या 3 या 5 दिन तक वो इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, जो लेंडी एसेंडिंग पैरालिसिस होता है उसकी रिकवरी के लिए, ठीक है। नाउ मूव टू द अदर स्लाइड, दैट इज उसमें है प्लाज्मा फेरेसिस, देन स्टेरॉइड्स एंड और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स आर ऑल्टरनेटिव इफ इंट्रावेनस IG इज इनइफेक्टिव, ठीक है। सो प्लाज्मा फेरेसिस हो सकता है, यू कैन सी सम व्हाट हैपन इन अ प्लाज्मा थेरापी, इन प्लाज्मा एक्सचेंज थेरापी इन अ राइट साइड फिगर दे हैव ट्राई टू शो दैट प्लाज्मा थेरापी में इस तरह का वो ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और उसमें वो जो क्रॉस दिखाई दिया है वो है जो T सेल जो मीडिएटेड हो जाते हैं ऑटोइम्यून प्रोडक्शन से, तो उसको वो किल करते हैं और आपको रिकवरी पीरियड मिल जाता है, उसकी वजह से आपका रिकवरी पीरियड फास्ट हो जाता है। प्लाज्मा अगर न्यू फ्रेश प्लाज्मा आपको ट्रांसमिट करता है बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में, तो वो जल्दी रिकवरी आ सकती है, राइट। और इम्यूनोग्लोबुलिन, जो इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन हमने दी है, अगर वो नहीं हो पा रहा है उसके वजह से रिकवरी, तो उसकी जगह पे हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स अल्टरनेटिव में दे सकते हैं, राइट। नाउ कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इंटरफेरॉन इज इफेक्टिव इन सम पेशेंट्स। सो कॉम्बिनेशन में भी ड्रग्स दे सकते हैं, वही बताने की कोशिश की है। और उसके बाद है सपोर्टिव केयर सच एज रेस्पिरेटरी सपोर्ट, प्रिवेंशन ऑफ डिक्यूबिटी इन चिल्ड्रन विथ फ्लैसिड टेट्राप्लेजिया, राइट, एंड द ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली सपोर्टिव केयर में रेस्पिरेटरी सपोर्ट जो होता है उसमें वेंटिलेशन देते हैं, राइट। सो और प्रिवेंशन डिक्यूबिटी इन द चिल्ड्रन विद द फ्लैसिड टेट्राप्लेजिया, तो अगर मीन्स चिल्ड्रन में अगर दूसरा ये डिक्यूबिटी नाम का अगर कोई डिजीज़ है और कोई फॉल्ट है और कुछ भी डैमेजिंग थिंग है, तो वो जल्दी से प्रिवेंट कर लेते हैं, राइट। सो वो उसकी वजह से फ्लैसिड टेट्राप्लेजिया होने से रुक जाता है, राइट। सो ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ मूव टू द अदर स्लाइड, फिजियो ट्रीटमेंट। ओके, अभी alright, in final year you will get to know the whole physio treatment of GBS, but right now in the 3rd year you can see this treatment we can give as a physiotherapist. उसमें first है regain the muscles independence with the everyday task, okay, retain the normal movement patterns, improve the patient's posture, improve the balance and coordination, maintain clear airways, prevent lung infection, support joint in a functional position or minimize the damage or deformity, prevention of pressure sores, maintain peripheral circulation, provide psychological support for the patient and relatives. Okay, so बाजू में right side पे figures दी हुई है, that is basically the physiotherapy treatment we are giving, right. सो उसमें बेसिकली अगर पैरालिसिस होता है तो उसकी ट्रीटमेंट होती है, राइट। फिर रेस्पिरेटरी अगर अफेक्टेड हुआ है तो उसके लिए हम लोग ACBT टेक्निक है, एक्टिव साइकिल ब्रीदिंग टेक्निक्स वो हम दे सकते हैं। क्लियर जो मेंटेनेंस एंड क्लियरेंस ऑफ द एयरवेज, राइट, उसके लंग कंप्लायंस भी बढ़ जाता है, अच्छे होते हैं। देन लंग इन्फेक्शन रिमूव हो सकते हैं, राइट। देन प्रेशर सोर्स रिमूव कर सकते हैं, उसमें बेड सोर्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एडवाइस कर सकते हैं, हम प्रोवाइड तो नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद है प्रोग्नोसिस।
ठीक है. Prognosis, spontaneous, wait, okay, spontaneous recovery begins with the 2-3 weeks. All right, most regain normal muscular function. Tendon reflexes are usually the last function to recover. Improvement usually follows the gradient inverse to the direction of the involvement. Then bulbar and respiratory muscle involvement may lead to the death if the syndrome is not recognized and treated. Okay, 3 clinical features predictive to poor outcome: cranial nerve involvement intubation. Okay, then maximal disability at the time of presentation. Alright, so ये prognosis जो है उसमें बेसिकली कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी कौन से सिम्टम्स दिखाई दे रही है, कौन से रिकवरी हो चुके हैं, तो उसके साथ हम रिलेटेड कर सकते हैं. ठीक है, सो प्रोग्नोसिस में इतना ही है. ओके, सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच पीयूष, डॉक्टर पीयूष जैन. Thank you so much, Dr. Piyush Jain, for giving me this opportunity to conduct this lecture. For hope my small contribution to help you to all the students during this lockdown period. So thank you so much. Thank you.